Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the respected members joining us today for this important webinar on GST for NGO NPO. First, I would like to acknowledge and thanks our organizers here, Dr. Raj Chawla sir, whose continued efforts and vision make this session like this possible. Sir, your commitment to professional learning and community knowledge sharing truly inspire us. Thank you so much, sir. I would like to request, sir, give the welcome address to today's speaker, C.S. Sanjeev Goel, sir. Thank you, Satyam ji. Good afternoon, everyone. I welcome all of you in this today webinar on GST on NGO and NPO. Very interesting subject will be taken by our guest faculty, CS Sanjeev Goel ji. And if you have any query, you can write in the Q&A or after the deliberation by our guest speaker, you can ask your query directly with to our speaker, and in the end also we will take up all the query remaining with our members. So with this, I welcome once again all of you. Thank you, Satyam. Welcome, sir. Today we are honored to have with us our esteemed speaker, C.S. Sanjeev Goyal, sir, a distinguished professional with over 13 years of specialized experience in the NGO and NPO sector. With multiple qualifications ranging from CA, M.Com, LLB, DISA, Valuer, SFA, Social Auditor, and several specialized certifications, he brings unmatched expertise. He is also a well-known speaker at study circles and seminars, consistently guiding organizations on governance, compliance, and best practices. We are excited to learn from his deep insights today's webinar. I would request all the participants to stay engaged, drop your questions in the chat box, and make the most of this session. With that, let's begin today's webinar. Over to you, C.S. Sanjeev Goyal, sir. Thank you, Satyam ji. Thank you, Raj Chawla sir, for Welcome, sir. giving such an opportunity. So I should share my slides. Satyam ji, is it visible to everyone? Mm, No, Sir, sir. Yes, yeah, sir. yeah, it is visible, sir. Please Yeah. carry on. Okay. Ji, sir. So today our topic is GST on NGO NPO. बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि नॉर्मली कभी हम ऐसा समझते हैं कि एनजीओ एनपीओ पर कोई जीएसटी लगता ही नहीं है। तो आज हम बेसिकली 17 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किन किन वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, चाहे वो एजुकेशनल हो, हेल्थ केयर हो, स्पोर्ट्स हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पर जीएसटी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा। और हम बीइंग ए प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर या क्लाइंट के लिए वो ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बेसिकली पहले से ही हम ऐसा समझते हैं कि एनजीओ एनपीओ के ऊपर तो कोई जीएसटी लगता ही नहीं है। So we will cover today topic is GST implication on educational institute, vocational training, healthcare rehabilitation, sports foundation, religious institutes, dharamshala, library, animal welfare, environmental, RWA, club, incubator, research and donation. So these are all will be covered in today's seminar. So let's start with the educational. Here we categorize these all 16 into three parts. Basically, one is the कुछ organization के लिए हमारे पास specific entry भी हैं, और 12A और 12AB का जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर भी exemption होती है। तो we will cover first the dual exemption part, then we will go with the 12A लाइसेंस, जहां पर केवल एक वो ही रोल प्ले करता है और कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं दी गई है लॉ के अंदर। देन वी विल गो विद द स्पेशल मैकेनिज्म, जहां पर कि 12A का कोई रोल नहीं है। अदर एंट्रीज बेसिकली यू नीड टू एवेल्युएट, यू नीड टू बेसिकली फाइल रिटर्न एज पर द देयर एंट्री ओनली। तो जीएसटी का इम्पैक्ट हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन पे देखेंगे, बट स्टार्ट करते हैं हम ड्यूल एग्जेम्पशन में, जहां पे कि स्पेसिफिक एंट्री भी है और 12A 12AB का लाइसेंस जो बेसिकली रोल प्ले करता है वो किन किन पर करता है। सो सबसे पहले इस बेसिकली इस मैकेनिज्म के अंदर आता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में
सबसे पहले हमें बेसिकली एजुकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एजुकेशन का मीनिंग, सेकंड, एजुकेशन का मीनिंग हमारे जीएसटी लॉ में नहीं दिया गया है। तो लोक शिक्षा ट्रस्ट में एक बेसिकली एक केस था, उसके अंदर एजुकेशन का मीनिंग बताया गया कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग नॉलेज स्किल करेक्टर ऑफ स्टूडेंट थ्रू फॉर्मल स्कूलिंग। तो बेसिकली जो एक स्कूल के अंदर बैठकर हम स्कूलिंग करते हैं, दैट इज द एजुकेशन, जो कि एजुकेशन सर्विसेज का जिसमें क्लासिफिकेशन बताया: प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यहाँ पर आप प्रोफेशनल कोर्सेज तक देख रहे हैं, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड अदर एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज, जनरल, टेक्निकल, वोकेशनल। एजुकेशन के अंदर यहाँ पर इन्होंने सब कवर कर दिया, बट जीएसटी लॉ के अंदर आपको एग्जेम्पशन एजुकेशनल सर्विसेज की नहीं मिलती है। वहां पर जो आपके लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता क्या है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेसिकली प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपका 12th क्लास तक। उसके बाद करिकुलम बेस्ड एजुकेशन दैट लीड्स टू क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। तो यहाँ पर करिकुलम बेस्ड होना चाहिए, प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिग्री लॉ की मिल रही हो, प्लस थर्ड आता है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेस, एनसीबीटी से अप्रूव्ड होने चाहिए, मोस्टली गवर्नमेंट बॉडीज में कवर होती हैं। तो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन्होंने 3 कैटेगरी दी गई हैं, बट 12th तक की बेसिकली जो भी एजुकेशन है दैट इज एग्जेम्प्ट विदाउट एनी डिस्कशन, अगर वो स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को दी गई है तो। अदरवाइज ये दो चीजें बेसिकली इसके ऊपर कंडीशनल बेस्ड है। तो एंट्री नंबर 66 है हमारी, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में इन्होंने बताया कि किस चीज की एग्जेम्पशन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किस चीज की एग्जेम्पशन एजुकेशन में मिलती है। तो सर्विस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने सर्विस प्रोवाइड की है स्टूडेंट को, फैकल्टी को या स्टाफ को, तो वो एग्जेम्प्ट होगी, वो निल रेट में काउंट होगी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने सर्विस ली है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट की, फैकल्टी, स्टाफ के लिए, कैटरिंग की इंक्लूडिंग मिड डे मील, सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज की, और सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने ये सर्विस ली है तो वो भी एग्जेम्प्ट होंगी। इसमें जो नीचे है पढ़ने का, इससे बेसिकली आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोवाइडेड नथिंग कंटेंट इन एंट्री बी shall apply to educational institute other than an institution providing service by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent। तो बेसिकली एंट्री बी में उन्होंने बताया जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पूरी एग्जेम्पशन मिल रही थी, यहाँ एंट्री बी में वो एजुकेशन उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल तक लिमिटेड कर दी। तो इससे रिलेटेड एक केस लेते हैं। यहां पर एक सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी बीएनआईटी इंस्टीट्यूट में सर्विस दे रही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। इसमें डिपार्टमेंट ने, एआर रूलिंग ने इनको टैक्सेबल बना दिया। कोई बता सकता है क्या रीजन रहा होगा? ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट बीएनआईटी है, ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कोई बता सकता है इसका आंसर? आखिर क्यों उन्होंने इसको टैक्सेबल बना दिया होगा? नितिन चावला सर ने बोला है नॉट अप्रूव्ड। नॉट अप्रूव्ड सर, फ्रॉम वेयर नॉट अप्रूव्ड?
यस, दिशा सहगल जी ने जो आंसर दिया है दैट इज राइट. दिस इज प्रोवाइड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल बियॉन्ड हायर सेकेंडरी. तो ये बेसिकली सिक्योरिटी की जो सर्विसेज दे रहे थे ये हायर सेकेंडरी से ऊपर के स्कूल को, ऊपर के कॉलेज को दे रहे थे. इस वजह से यहाँ पर एआर ने इसको टैक्सेबल बनाया. तो यही एंट्री नंबर 12 समझाना. एंट्री नंबर बी में लिमिटेशन थी कि जो आपको ये जो सर्विसेज मिल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपकी हायर सेकेंडरी स्कूल तक ही एग्जेम्प्ट हैं. अगर उससे ऊपर के किसी इंस्टीट्यूट को दी गई हैं तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होंगी, जैसा कि वीएनआईटी के केस में हुआ. जो एंट्री नंबर 66 थी उसके बेसिस पर जो एग्जेम्पशन स्कूल जो सर्विसेज देता है अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, स्टाफ को, ये एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कैटरिंग हो, हॉस्टल अकोमोडेशन हो, हेल्थ हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी सर्विसेज जब तक कि वो स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी को दी गई है तब तक वो एग्जेम्प्ट है. कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो टैक्सेबल होंगी, जैसे कि सेल ऑफ यूनिफॉर्म, बुक, स्टेशनरी. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अपने स्टूडेंट, स्टाफ को भी अगर दी है तो भी वो टैक्सेबल होगा. कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स. देयर इज ए नो एग्जम्पशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर द होल जीएसटी एक्ट. रेंटिंग ऑफ हॉल टू आउटसाइडर्स. अगर आपने स्कूल के बाद किसी को रेंट दे दिया, किसी को एक्टिविटी करने के लिए दिया या कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल. कैंटीन सर्विस आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी, ये भी आपका टैक्सेबल होगा. तो आपने अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आपने अगर इन तीनों चीजों में किसी में अगर पैसा कलेक्ट किया है तो आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होगी इन स्पाइट ऑफ यू आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. सेकंड जो हमने चेकलिस्ट तैयार की है दैट इज प्री स्कूल टू क्लास 12. अगर प्री स्कूल से क्लास 12 तक की ये एक्स सर्विसेज दी जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, कैटरिंग की, सिक्योरिटी की, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सारी एग्जाम्प्ट होंगी. अगर ये क्लास 12 से ऊपर दी जा रही हैं तो ये टैक्सेबल होंगी. जो एक बोर्डिंग स्कूल जो लोग चलाते हैं उसके अंदर जो उन्हें एजुकेशन, लॉजिंग, फूडिंग का जो एक्सपेंस बेसिकली फीस देना होता है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए नेचुरली वंडर्ड सर्विसेज और वो एग्जाम्प्ट होगा. ये एक सर्कुलर ने, हमारे 107 सर्कुलर ने बताया. ये चीजें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. कोई एडवर्टाइजमेंट इनकम है, अगर स्कूल ने कोई एडवर्टाइजमेंट इनकम रिसीव की है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसने कोई एडवर्टाइजमेंट इनकम अगर रिसीव की है टू एडवर्टाइज समथिंग, तो उसका कैंपस में होर्डिंग लगा रहे हैं, कोई न्यूज़लेटर पर प्रिंट कर रहे हैं, तो वो भी अपना टैक्सेबल होगा 18% के हिसाब से. एक केस लॉस की अगर बात करते हैं तो एआर रूलिंग महाराष्ट्र जैन एजुकेशन सोसाइटी का केस था. यहाँ पर क्या था कि महाराष्ट्र जैन एजुकेशनल सोसाइटी हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड करती थी. तो उनका जो एकेडमिक ईयर था वो 10 महीने के लिए होता था. तो 10 महीने में उन्होंने 2 महीने जो वेकेंट होता था उसके लिए उन्होंने न्यू स्टूडेंट्स को और अदर्स को वो अपना हॉस्टल दे दिया. तो एआर ने ये बात मानकर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया बिकॉज दीज सर्विसेज आर नॉट गिवन टू द स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी. न्यू स्टूडेंट अभी तक एनरोल नहीं हुए, जस्ट एक वो नए गेस्ट की तरह आए थे, तो उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया. तो बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने के बाद भी उसको टैक्स देना पड़ गया. वहीं दूसरे केस में इमराल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल ने क्या किया कि जब वो कोई एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उन्होंने बाहर के आउटसाइडर्स को भी उसमें इनवाइट कर लिया. तो यहां पर भी एआर ने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया. एक आईआईपीएम मैनेजमेंट कोर्स ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज चलाते थे अंडर द जीएसटी रिजीम. आईआईपीएम बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, सोसाइटी नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था.
यहाँ पर उसको, क्योंकि वो एक रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं दे रहे थे, तो जब हमने पढ़ा था यहाँ पर कि जो हमें एजुकेशन जो 12th से ऊपर के इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर वो करिकुलम बेस्ड एजुकेशन जो कि एक रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं दे रहे हैं, तो वो टैक्सेबल बनेंगे। तो यहाँ पर ये ठीक ये एंट्री एप्लीकेबल हो गई आईआईपीएम के साथ। यहाँ पर इन्होंने एक रिकॉग्नाइज डिग्री ये नहीं दे रहे थे, इस वजह से इनके ऊपर सारी इनकम के ऊपर इनके टैक्स लगा दिया गया। इंटेलिजेंस हमने कवर कर दिया। दोस्तों, आज के टाइम में बेसिकली मोदी जी के मेक इन इंडिया में स्किल पर काफी जोर है। तो बेसिकली हम जहाँ एआई वगैरह का जमाना है, वहां आपको बेसिकली एक स्किल्ड मैन पावर, आपको एक रचनात्मक तरीके से सोचना होता है, बजाय कि एक ट्रेडिशनल बेसिकली जो एजुकेशन आप करते हुए आ रहे हो। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग स्किल सेंटर या वोकेशनल ट्रेनिंग में आ गए हैं, जो कि बेसिकली आपको डायरेक्ट बेसिकली प्लेसमेंट देते हैं, एजुकेशन देते हैं, और आपको इस लायक बनाते हैं कि आप जॉब ज्वाइन कर सकें। तो उन्हीं के ऊपर बेसिकली हमारी जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो हम इन स्लाइड्स में देखेंगे। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं, वो कर रखी हैं एंट्री नंबर 69 से 72 तक। यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट से मेरा मतलब क्या है कि एंट्री नंबर 69 के अंदर वो एनएसडीसी एसएससी से अप्रूव्ड पार्टनर होना चाहिए। एंट्री नंबर 70 से असेसमेंट एजेंसी है, जो कि एनएसडीसी एसएससी से एम्पेनल्ड होगी। एनएसडीसी का मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल से अप्रूव्ड होने चाहिए। एंट्री नंबर 71 में दीनदयाल उपाध्याय या ग्रामीण कौशल विकास योजना से अप्रूव्ड ट्रेनिंग पार्टनर होना चाहिए। या एंट्री नंबर 72 में उसको बेसिकली फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट से अगर वो है इंस्टीट्यूट, तो भी उसको माना जाएगा कि वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। बट एनएसडीसी एसएससी इन सब से अगर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या है। इसके ऊपर एक केस लॉ ले लेते हैं पहले। एनएसडीसी एसएससी से एक इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड था, तब भी उस पर जीएसटी लगा दिया गया। यहां पर एक टीम लीज एजुकेशन फाउंडेशन का केस है, जहां पर कि टीम लीज एजुकेशन फाउंडेशन एनएसडीसी से अप्रूव तो थी, टीएफ इज एनएसडीसी पार्टनर, बट द जो उसकी ट्रेनिंग बेसिकली जो वो प्रोवाइड कर रहा था, जो कोर्स था, वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम एनएसडीसी से अप्रूव नहीं हुआ। तो बेसिकली उसके ऊपर उस वजह से जीएसटी लग गया। तो केवल उससे अप्रूव होना से आप कोई भी कोर्स नहीं चला सकते हैं। आपको अप्रूव होने के बाद जो उसकी गाइडलाइन दी गई हैं, जो उसने आपके लिए कोर्स करिकुलम अप्रूव्ड किया है, केवल आप उसी दायरे में रहकर पढ़ाएंगे, तभी बेसिकली आपका वो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। 69, 70, 71, 72 इसकी थ्योरी मैं बेसिकली स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी, तो भी हम एजुकेशन का खत्म करने के बाद क्वेरी ले सकते हैं इसकी ना। So what if your organization not covered under the 69 to 72 जीएसटी implication उसके ऊपर क्या होगा। वो कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर फॉल नहीं किए। प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नॉट एफिलेटेड विद एनएसडीसी एसएससी और एनी गवर्नमेंट स्कीम, ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय द एनजीओ ट्रस्ट और कंपनीज विदाउट फॉर्मल एनएसडीसी और गवर्नमेंट अप्रूवल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एनहेंसमेंट, skill program conducted for commercial organization or industries, course run under the franchisee agreement. These are the organization जहां पर की still कोई बेसिकली उनको एग्जेम्पशन एंट्री अभी तक 69, 72 इनको बेनिफिट नहीं दे पाई, अभी भी जीएसटी में टैक्सेबल हैं।
तो दोस्तों, इसमें एक एंट्री होती है जो कि हमारी मास्टर नोटिफिकेशन में एंट्री नंबर 1 है। उसमें ये मैंने आपके लिए एक पार्ट लिया है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट। तो जब एंट्री 12AA12AB से रिलेटेड है, तो मैंने इस तरह से यहाँ स्टार मार्क किया है कि वो एंट्री केवल और केवल 12A के लाइसेंस की वजह से आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। तो उसमें क्या बताया गया है, 12A 12AB का लाइसेंस अगर उसके पास है और वो जो ट्रेनिंग दे रहा है वो एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, किनका? पुअर का, ऑर्फन का, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली टर्मिनाइज पर्सन, एब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स और पर्सन ओवर एज इन 65 इन पर्सन ओवर एज 65 इन रूरल एरियाज। तो अगर ऐसे लोगों को वो इंस्टीट्यूट सर्विस दे रहा है तो उसकी सर्विसेज 12A के लाइसेंस की वजह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इन स्पाइट की वो एनएसडीसी, एसएससी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में एग्जेम्प्ट नहीं था तब भी। मोस्टली जो हमारे एनजीओ रन करते हैं उनमें एवेंडेंट, ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन और फिजिकल मेंटली एब्यूज टर्मिनाइज पर्सन, इस एंट्री के अंदर हम उन लोगों को कवर करते हैं जहां पर कि एक एनजीओ रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रही होती है, पर उसके लिए उसके पास 12AA का लाइसेंस होना जरूरी है। सो दोस्तों, उस चैरिटेबल एग्जेम्पशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? बाकी सारे इंस्टीट्यूट तो अभी भी टैक्सेबल रहेंगे, बट जो ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय द एनजीओ, ट्रस्ट और कंपनीज विदाउट फॉर्मल एनएसडीसी और गवर्नमेंट अप्रूवल, जिसके पास कोई गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं थी, वो एग्जेम्प्ट हो गया ड्यू टू द 12A 12AB के लाइसेंस की वजह से। दोस्तों, जो स्किल प्रोग्राम देते हैं वो साथ में प्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर प्लेसमेंट सर्विसेज उनकी पार्ट ऑफ द जॉब है और उसके लिए वो कोई सब्सटेशनल मनी नहीं ले रहे हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट कुड बी द टैक्सेबल इफ it is a principal supply and they are charging the huge money for it. हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड हम केस ले लेते हैं। यहाँ पर एक विक्रम ए साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर एक एग्जीबिशन, बेसिकली साइंस एग्जीबिशन, साइंस पॉपुलराइजेशन, एस्ट्रोमनी शोज, वर्कशॉप वगैरह चला रहे थे। इनको एआर ने टैक्सेबल लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये कोई बताएगा इनको एआर ने क्यों टैक्सेबल बना दिया? पार्टिसिपेंट्स, कैन एनीवन टेल कि एआर ने इसको क्यों बेसिकली टैक्सेबल बना दिया? Not educational institute is the right answer. That is also written here. Also उसको बचाने के लिए 12A 12AA का इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। तो बेसिकली ये अपने को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में तो आता ही नहीं था, क्योंकि ये जो बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग, जो करिकुलम बेस्ड एजुकेशन दे नहीं रहा, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो बनेगा ही नहीं। प्लस अगर इसके पास 12AA का लाइसेंस होता तो माइट भी ये स्किल सेंटर कह के बच सकता था, तो ये उसमें भी फॉल नहीं किया, इसलिए उसको जीएसटी एआर ने टैक्सेबल बना दिया। एवरीवन नोज दैट कि
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर आपको रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी देना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये केस है, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये फॉरेन कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे थे। फॉरेन कंसल्टेंसी सर्विसेज इन्होंने रिसीव की ग्लोबल स्किल पार्क को डेवलप करने के लिए। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि ये एग्जेम्प्ट हैं, बट एआर ने इनको बेसिकली बताया कि ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज द बिजनेस एंड यू नीड टू पे द जीएसटी ऑन इट। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Alumni fees, alumni association charges, whether alumni fees are taxable. फातिमा जी ने बोला है यस, दिशा मैम ने भी बोला है यस, नितिन चावला सर ने भी बोला है यस। रीजन तो बताइए ताकि पार्टिसिपेंट्स को पता चले क्यों यस है। ये बात सही है कि इसका आंसर यस ही है। Anyone can tell reason? Because alumni fees, which is taken by the educational institute, yes, दिशा मैम ने सही आंसर दिया है। सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टाफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट आर एग्जाम, बट दिस इज नॉट ए एजुकेशनल सर्विसेज। बेसिकली जो ये एलुमनाई चार्जेस ले रहे हैं ये स्टूडेंट से नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। सेकंड क्वेश्चन है अपना, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, आईडी कार्ड फी, लेट फी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फी, ये अगर ले रहे हैं तो क्या ये टैक्सेबल होगा या एग्जाम्प्ट होगा? ये स्टूडेंट से लिया है। अगेन दिशा मैम ने, विशाल जी ने, नितिन जी ने सही आंसर दिया है, बी पंकज जी ने कि ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है। बस फी कलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम स्टूडेंट्स, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल? एग्जाम्प्ट। नितिन जी, विशाल जी, राइट। एग्जाम फॉर्म फीस कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज बाय स्कूल इज टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट? राहुल बंसल जी, सर आपने एग्जाम बताया, रीजन? फातिमा जी ने भी बताया एग्जाम्प्ट, रीजन? नितिन जी ने भी एग्जाम बताया, रीजन? ट्रांसपोर्ट सर्विस थोड़ी ना है सर एग्जाम। एग्जाम फॉर्म फीस, एग्जाम फॉर्म फी, अच्छा ओके। एग्जाम फॉर्म फीस कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी बाय द स्कूल इज टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट? राहुल सर ने बताया एग्जाम्प्ट है, बट सर रीजन बताइए। That is not due to the entry number 66, विशाल जी। दैट इज द, यस, दिशा मैम ने जो बताया रिम्बर्समेंट इन नेचर है। ये एंट्री नंबर 3 प्योर गवर्नमेंट की, बेसिकली जब हम गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो बेसिकली रिम्बर्समेंट नेचर इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज वेदर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल आर एग्जाम्प्ट? नितिन सर ने बताया एग्जाम्प्ट।
नितिन सर ने बोला रीजन प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट्स. सो बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पर मेरा मीन्स है आईटी सर्विसेज से. तो आप उस हिसाब से आंसर दीजिए. अगर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट में, तो क्या टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? नितिन सर ने बोला है देन टैक्सेबल. टैक्सेबल, विशाल जी ने बोला है टैक्सेबल. राहुल जी ये टैक्सेबल ही होगा बिकॉज दीज आर द आईटी सर्विसेज. Is GST applicable on study material, books or kits supplied along with the vocational training? Taxable, exempt? Bundled is a definitely very right answer. Actually, पंकज जी ने आंसर दिया है सही आंसर. सो बेसिकली अगर स्टडी मटेरियल, बुक्स, किट सप्लाई, वोकेशनल ट्रेनिंग अगर एनएसडीसी एसएससी का पार्ट है, अगर वो एग्जाम्प्ट है, तो डेफिनेटली ये भी एग्जाम्प्ट होगा. अदरवाइज बंडल्ड सर्विस के हिसाब से इसको भी फिर टैक्सेबल बनाएंगे अगर वो भी उसकी मेन वोकेशनल ट्रेनिंग ही टैक्सेबल है. तो 7th क्वेश्चन का आंसर दीजिए. पॉइंट नंबर 5 इज नॉट क्लियर yet. पंकज सर, basically online learning platform we are talking about the IT services. IT सर्विस अगर एक स्कूल को दी जा रही हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगी या टैक्सेबल होंगी? तो आईटी सर्विस प्रोवाइडर के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ना. 7 का दिशा मैम ने, विशाल जी ने जो आंसर दिया है इज राइट, टैक्सेबल. 8th नंबर का आंसर बताइए. बंडल इज अगेन द राइट आंसर. पंकज जी ने सही बताया है, नितिन जी ने सही बताया है. ठीक है. Now, if we have any specific query for the educational institute, then we can ask on it. We have end our session for the educational services. Now we will move to the healthcare services. If any specific query remain still for the educational services, then you may ask for the educational institute or vocational training center. सर पीपीटी तो जरूर शेयर होगी आपको ना, पीपीटी मिल जाएगी. Searching in affiliation service taken by the school in India from foreign nation are taxable. दिशा मैम ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर गवर्नमेंट किसी ट्रेनिंग को फुल्ली फंडेड कर रही है तो वो एग्जाम्प्ट होगा. will it be exempt? Definitely. Where the organization is sectioned does commercial activity as well? No मैम. एक्चुअली हमने टीएफ में देखा था, जो हमारा टीम लीज फाउंडेशन का केस था, वहां पर जो वो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो कोर्स उनको अप्रूव किया है, अगर वो उससे बाहर जाएंगे तो वो डेफिनेटली टैक्सेबल होगा. इज इट क्लियर दिशा मैम? संजीव जी.
सत्यम जी, दिशा मैम को एक बार अलाउ करिएगा प्लीज। हाँ जी सर। ओके सर। इनको अलाउ करिए और क्वेरी पूछने दीजिए उनको। संजीव जी, हाँ जी। हो गया मैम। आजकल ये स्कूल वाले फॉरेन स्टडी टूर्स लेके जाते हैं बच्चों के लिए। बहुत से स्कूल्स में ये ट्रेंड हो गया है। तो उसके ऊपर जीएसटी की कैसे एप्लीकेबिलिटी रहेगी, वेदर इट इज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सर्विसेज बिकॉज इट इज बियॉन्ड द सीबीएसई करिकुलम। इट इज नॉट एज पर सीबीएसई करिकुलम बट स्टिल नासा बच्चों को लेके जाया जाता है, और ऐसे काफी कंट्रीज में कॉमनवेल्थ वगैरह के लिए लेके जाते हैं। सर एक्चुअली ये जो टूर्स वाला है ना, अगर ये स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को दिया गया है, तो एज पर माई ऑब्जर्वेशन, एज पर माई नॉलेज, दैट शुड बी एग्जाम्ड, बिकॉज वो बेसिकली कहीं ना कहीं उनके लिए वो एजुकेशनल टूर बोल के ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। जी, so it would be exempt under as a bundled service and an extension of education rendered by the school. हाँ सर, मतलब एजुकेशनल, if we talk about the educational institute which is limited to the basically एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर एक सर्विस दे रहा है अपने स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टी को, दैट विल रिमेन एग्जाम्प्ट इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ देम। Okay. एनीथिंग फर्दर ऑन इट सर? No, that is fine. अच्छा, अभी जैसे डिस्कशन के दौरान, हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अभी डिस्कशन के दौरान ये था कि जैसे स्कूल ने अपना जो हॉल है, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसको किसी आउटसाइडर को उसने रेंट पे दिया, तो टैक्सेबल होगा सर। जीएसटी लगेगा। जी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो एक बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट है 20 लाख की, वो रहेगी कि नहीं रहेगी? थोड़ा लाउड बोलिए, क्या कह रहे हैं? मतलब उसके ऊपर कोई एग्जेम्प्टेड बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट मिलेगा उसके ऊपर कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? आईटी? एग्जेम्प्टेड लिमिट 20 लाख का लिमिट। अच्छा, वो कह रहे हो आप? हाँ जी। पर 20 लाख के लिमिट के लिए तो वो आपको सारा फीस एवोलेट करना ही पड़ेगा ना, मतलब वो वाला उनके लिए स्पेशल एक चीज के लिए थोड़ी ना मिलेगा अलग से। नहीं, बट जैसे फीस तो मेरी इन एनी केस अगर मेरी 3 करोड़ या 4 करोड़ आ रही है, और एक तो सर आप नॉर्मल। जो एग्रीगेट एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना उसको। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर इफ द रेंट इज इवन 10,000 देन ऑल्सो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। हम्म। ओके। सत्यम जी, मेरे पास एक्चुअली ये 40 मिनट्स वी हैव ऑलरेडी पास्ड एंड वी हैव टू कवर द 16 मोर 14 मोर ऑर्गेनाइजेशन। जी So सर। if we have some quick question, then we can ask. सर सर। दिशा मैम एक्चुअली काफी देर से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, अगर उन्हें आप अलाउ कर सकते हैं तो। यस सर, अलाउ किया है मैंने सर उनको। I think for the purpose of benefiting to all of you, we should move forward. Convocation I will cover after the seminar. Okay, please. So now I am moving further. GST on healthcare services. So basically, स्कूल के बाद जो कोई बंदा अगर हॉस्पिटल चला रहा है, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर, क्लिनिक के ऊपर क्या जीएसटी का इस एप्लीकेबिलिटी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस स्लाइड्स। तो जीएसटी के अंदर जो स्पेसिफिक एंट्री दी गई है, दैट इज एंट्री नंबर 74 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जिसमें कि बताया है कि क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स अगर वो सर्विस दे रहे हैं, तो दैट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड वेलनेस सेंटर्स।
ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर में आते हैं, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर में जो कि मेडिकल काउंसिल इन इंडिया से रजिस्टर्ड हैं या रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल प्रैक्टिशनर रिकॉग्नाइज अल्टरनेटिव सिस्टम आयुर्वेद यूनानी में रजिस्टर्ड हैं, वो इसमें ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर में आते हैं। और पैरामेडिक्स में नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आते हैं। सो summary of exemption is clinical establishment और authorized medical practitioner और paramedics, अगर ये लोग सर्विस दे रहे हैं हेल्थ केयर की, that remain exempt। ओपीडी के अंदर अगर कोई पेशेंट आता है और वो अपने को दिखाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, दैट इज एग्जाम। बट अगर वो दवाइयां लेके जा रहा है ओपीडी के अंदर आके दिखाने वाला बंदा, दैट तो ओपीडी को उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना मैंडेटरी है और उसके ऊपर जीएसटी की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। आईपीडी के अंदर इन पेशेंट जो आपके यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है उसके ऊपर आईसीयू की कैपिंग अभी रिसेंटली ही बेसिकली इन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल किया है कि अगर आईसीयू का 5,000 रुपए से ज्यादा का रेंट है तो 5% आपको उसके ऊपर जीएसटी देना मैंडेटरी है। मेडिकल काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी, कोई अगर मेडिकल कंसल्टेंसी ले रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट, बट दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ क्योर। तो हॉस्पिटल के लिए बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपका वो क्योर और केयर, अगर वो क्योर नहीं है और केयर के लिए ली जा रही है तो वो टैक्सेबल होगी। अगर क्योर अगर आपका हो रहा है उससे तो डेफिनेटली इट विल रिमेन एग्जेम्प्ट। Food supply in hospital, inpatients for exempt, outpatient it is taxable. Medical shops and supply of medicine, as we discussed, ओपीडी में या कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है इट विल रिमेन टैक्सेबल। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक सर्विसेज अगर वो क्योर के लिए ली जा रही है दैट इज रिमेन एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। veterinary services that is exempt under entry number 46। 73 के अंदर आपका कॉर्ड ब्लड बैंक्स वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती हैं। पब्लिक हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज एंट्री नंबर 74 के अंदर एग्जेम्प्ट होती है। और बायोमेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट 75 के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपकी कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई है तो उन पर आपको क्रेडिट नोट अगर विद इन टाइम आपने रेस कर दिया तो आप अपना वो जीएसटी रिवर्स कर लेंगे, अदरवाइज वो भी आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। फ्री सैंपल पर आपको जीएसटी मिलता नहीं है। यहाँ पर एक सर्कुलर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, डॉक्टर कंसल्टेशन हायर्ड बाय द हॉस्पिटल वेदर हायर्ड एज ए एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अगर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हायर्ड किए गए हैं तब भी वो हेल्थ केयर सर्विसेज अगर वो दे रहे हैं तब भी वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। रिटेंशन मनी अगर कोई वो रखते हैं और पोर्शन पे करते हैं डॉक्टर को, जो कि नॉर्मली सभी हॉस्पिटल में होता है, आप 800 का पर्चा बनवाते हैं और वहां पर 200 रुपये हॉस्पिटल को जाते होंगे, तो वो भी अमाउंट एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। फूड सप्लाई टू पेशेंट वी हैव डिस्कस्ड। कुछ एआर की रूलिंग्स हैं यहाँ पर, मैंने इनको समराइज किया है। अगर सेल कर रहे हैं आप मेडिसिन टू आउट पेशेंट हेल्थ टैक्सेबल, मतलब बाहर के किसी बंदे कोई आया ओपीडी में आया या बाहर से कोई विजिट करके हॉस्पिटल में आया और उसने आपके हॉस्पिटल में मेडिसिन खरीदी तो वो उसको टैक्स लगाना मैंडेटरी है। हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर एग्जाम बट एक्टिविटीज लाइक कैंटीन आर नॉट नेचुरली वंडर्ड हेंस टैक्सेबल। तो ये भी एक एआर रूलिंग में बेसिकली इन्होंने डिसाइड किया। आउट पेशेंट फार्मेसी एंड टेस्ट, तो अभी तक हम बात कर रहे थे मेडिसिन की। अगर आउट पेशेंट जो बाहर से बंदा आ रहा है और वो अपने फार्मेसी से दवाइयां खरीद रहा है या टेस्ट भी करा रहा है तब भी वो टैक्सेबल होगा। अगर एक हॉस्पिटल ने दूसरे हॉस्पिटल को डायग्नोस्टिक्स का कुछ सामान दिया है क्योंकि वो पेशेंट को नहीं जा रहा इसलिए वो टैक्सेबल होगा। रूम रेंट फॉर डॉक्टर, अगर रूम रेंट डॉक्टर से लिया जा रहा है वो वहां पर रुक रहे हैं दैट विल बी आल्सो टैक्सेबल। कॉमर्शियल सप्लाई ये सब एडवांस अथॉरिटी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से लिया गया है।
किसी को पर्टिकुलर केस चाहिएगा तो आई कैन ऑल्सो गिव दैट. एम्बुलेंस सर्विसेज, क्वेश्चन आंसर की अगर बात करें, एम्बुलेंस सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सर? एनीवन वांट टू शेयर देयर व्यूज? एग्जाम्प्ट. नितिन जी का आंसर सही है, एग्जाम्प्ट. What is the GST rate on food supplied to visitor or staff in a hospital? Five percent without ITC. Right. Okay. Then when must a doctor registered under GST? When they cross their threshold. Uh, when the doctor will cross their threshold and provided the taxable services, then they should register under the GST. That was the normal question. Is health counseling or diet counsel consultation is taxable or exempt? Can anyone share their views for care purpose? सर केयर पर्पस होगा तो टैक्सेबल होगा नितिन जी, पंकज जी, या एग्जाम्प्ट होगा? टैक्सेबल, राइट. अगर वो केयर पर्पस से है तो डेफिनेटली इट इज टैक्सेबल. योगा मेडिटेशन क्लास एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल? मिक्स आंसर्स. पंकज जी बोल रहे हैं टैक्सेबल. राहुल जी बोल रहे हैं एग्जाम्प्ट. फातिमा जी बोल रही हैं 12A अगर लाइसेंस होगा तो. सो योगा मेडिटेशन क्लासेस अगर बेसिकली क्योर के पार्ट से हैं तो डेफिनेटली इट इज एग्जाम्प्ट. और 12A लाइसेंस जो बेसिकली फातिमा जी ने जो आंसर दिया था, अगर 12A रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है तो दैट इज एग्जाम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल. सो हेल्थ केयर में बेसिकली दूसरी कैटेगरी आती है रिहेबिलिटेशन सेंटर. एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जीएसटी के अंदर जो एग्जाम्प्ट होता है वो 3 एंट्रियों में एग्जाम्प्ट होता है. The first entry is which is already covered under the medical is एंट्री नंबर 74A, जहां पर कि गवर्नमेंट आरसीआई रिकॉग्नाइज सेंटर है, गवर्नमेंट या रिहेबिलिटेशन सेंटर में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, तो वो एंट्री नंबर 74A में एग्जाम्प्ट होगा. या अगर वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के वो रजिस्टर्ड नहीं है और अगर वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो एंट्री नंबर 77 में हमने कवर किया था अगर उसके अंदर फॉल करता है तब भी वो एग्जाम्प्ट होगा. तीसरा आता है कि अगर 12AB या 12AA का लाइसेंस उसके पास था तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर एंट्री नंबर 1 में एग्जाम्प्ट होगा. मैं आपको एंट्री नंबर 1 दिखाता हूँ.
सो एंट्री नंबर 1 इज जहां पर की रिहेबिलिटेशंस, ये जीएसटी की मास्टर नोटिफिकेशन है जहां पर की चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए बहुत सारी एग्जेम्पशन दी गई हैं 12/2017 में, जहां पर की बताया है कि अगर कोई बंदा पर्सन विद सर्वे फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से अगर गुजर रहा है, तो अगर उसकी हम कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसकी इलाज कर रहे हैं, तो वो एंट्री नंबर 1 के अंदर एग्जाम्प्ट होगा अगर उसके पास 12A 12AB का लाइसेंस है तो। एक केस लॉ है रिहेबिलिटेशन सेंटर से रिलेटेड, जहां पर कि इसको टैक्सेबल बना दिया। यहाँ पर क्या था, एक सपना दाना रिहेब रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का केस था, जिसमें कि रिहेबिलिटेशन सेंटर ने एआर में अपील की कि ये क्या रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज में एग्जाम्प्ट होगा। तो उन्होंने बताया कि जो रिहेब की जो एक्टिविटी है, दैट इज एग्जाम्पशन ओनली फॉर द मेंटल इलनेस, मेंटल रेडिट्रेशन, drug addiction, behavioral issues. If the center treats physiotherapy, stroke rehab, autism, speech therapy, old age care, orthopedic rehab, etc., these are not exempt under the entry number 74A. तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर वो फिजियोथेरेपी स्टॉक, मतलब अगर वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, 12A 12AB का इसके पास लाइसेंस था नहीं, और ये 74A के बेसिस पर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे थे, तो इलाज कर रहे हैं फिजियोथेरेपी स्टॉक रिहैब ऑटिज्म वगैरह का, तो ये सारी चीजें 74A एंट्री के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होती हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है हेल्थ केयर से रिलेटेड? नो क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज जीएसटी ऑन स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जहां पर कि स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली इंडिया में काफी सारी एग्जेम्पशन दी गई हैं। तो किन चीजों पर स्पोर्ट्स में टैक्स लगता है, किन इंस्टीट्यूट्सों को एग्जेम्पशन मिलती है, वो हम इस वाली स्लाइड्स में देखेंगे। जीएसटी एग्जेम्पशन में कुछ स्पेसिफिक एंट्रियां हैं जो कि बेसिकली स्पॉन्सरशिप, अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट को की गई है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट का मतलब हो गया, अगर केवल समरी में समझाऊं तो अगर कोई सरकारी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट को अगर आपने कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। कोई सरकारी इंस्टीट्यूट को सरकार से एफिलेटेड था, उसको अगर किसी प्लेयर ने, रेफरी ने, एम्पायर ने, कोच ने, टीम मैनेजर ने अगर वो सर्विसेज दी है, तो वो 999(2) के अंदर एग्जेम्प्ट होगा। ये एंट्री 999(6) वाली एंट्री केवल फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आई थी। और चौथी एंट्री जो बेसिकली स्पेसिफिक एंट्री जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो है एंट्री नंबर 81 स्पोर्ट्स के लिए, जहां पर की रिक्रिएशनल कल्चरल एंड स्पोर्टिंग इवेंट, जहां पर की सर्कस, डांस, थेरेटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, तमाशा, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट इवेंट और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट इवेंट, इन सब के अंदर अगर एडमिशन की टिकट 500 रुपए से कम है, यानी कि 499 रुपए तक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो 12A रजिस्टर्ड हो, 12A रजिस्टर्ड ना हो, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट हो, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो इनसे रिलेटेड है, सर्कस, डांस, थेरेटिकल परफॉर्मेंस, इस एंट्री के अंदर एंट्री नंबर 81 के अंदर सबको एग्जाम किया गया है, फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑफ ऑल। तो दिस इज अ वेरी वेलकमिंग एंट्री बेसिकली, जहां पर कि एक एनजीओ अपने को सस्टेन कर सकती है, 500 रुपए की से नीचे की फीस लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकती है और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। This is not applicable only for the sports. This is applicable
for all the organization who is providing the recreational, cultural and sporting event. So हमने देखा कि 9985, 9992, 995 और 996 इसके अंदर स्पॉन्सरशिप, प्लेयर्स जो सर्विसेज दे रहे थे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, और कंसेशनरी जो 500 रुपए से नीचे की जो बेसिकली एडमिशन फीस ली जा रही थी, तो इन तीनों की एग्जेम्पशन अवेलेबल थी। और चौथी एग्जेम्पशन जो आपको बेसिकली बचा सकती है वो है 12A, 12AA, 12AB का लाइसेंस। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों के लिए काम आएगा जो कि सरकारी नहीं है और जो 500 रुपए से ऊपर की फीस लेना चाहते हैं या और चीजों में भी इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए 12AA, 12AB का लाइसेंस काम आएगा, जहां पर की एंट्री में बताया गया है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज। इन इन चीजों में अगर आप काम कर रहे हैं और आप 12AA, 12AB का लाइसेंस रखते हैं तो आप पूरी तरह से जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट हैं, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर इसकी डिटेल्ड में इसको समझेंगे, इसको डिटेल्ड में अगर समझेंगे तो यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स बाय द चैरिटेबल एंटिटी, ट्रेनिंग और कोचिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो आता है दैट इज पेंटिंग वर्कशॉप, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, आर्ट एग्जीबिशन वेयर पीपल पार्टिसिपेट, क्लासिकल डांस, फोक आर्ट, हेरिटेज वॉक, कल्चरल फेस्टिवल, स्पोर्ट्स में स्विमिंग, फुटबॉल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स, ये जुम्बा, जिम वर्कआउट, समर कैंप, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इनके लिए 12A की लाइसेंस वाली एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। दे आर फुल्ली टैक्सेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एंट्री। कोई अगर बेसिकली आप अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी की मेंबरशिप अगर आपने ले रखी हुई, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा वगैरह में, तो वहां पर अगर जो आपसे मेंबरशिप फीस ली जाती है तो एक 2021 में बेसिकली ये ऐड किया गया 71AA। इससे पहले बेसिकली जो मेंबर से पैसा लिया जाता था उसको अलग नहीं माना जाता था और उसको म्यूचुअलिटी के आधार पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था। बट इसके आने से आपके ऊपर जो भी मेंबरशिप फीस या एनुअल सब्सक्रिप्शन एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती थी उसके ऊपर अब जीएसटी लगने लग गया। स्पॉन्सरशिप फीस इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये पहले आरसीएम के अंदर होता था, अब 15 जनवरी से 15 जनवरी से इसको 18% फॉरवर्ड मैकेनिज्म में कर दिया। रॉयल्टी ब्रांडिंग इज ऑल्सो टैक्सेबल। केस लॉ की अगर बात करते हैं तो एक नवी मुंबई स्पोर्ट्स फाउंडेशन का केस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो सर्विसेज ये बहुत सारी देते थे, जैसे कि मेंबर से फीस कलेक्ट करते थे वो तो टैक्सेबल था ही, बट जो कोचिंग इन स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल ये सब देते थे ये एग्जेम्प्ट है। बट ये साथ में फिटनेस ट्रेनिंग एंड जनरल समर कोचिंग डू नॉट फॉल अंडर द स्पोर्ट, तो ये जो देते थे इसको इसने एआर ने इनको टैक्सेबल बना दिया। बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग एंड जनरल समर कोचिंग को माना कि ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आती है। तो दोस्तों आप भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस चीज में काम करती है आप उनको अवेयर कर सकते हो इस केस का रेफरेंस देकर कि ये स्पोर्ट्स फाउंडेशन आर नॉट बेसिकली एग्जेम्प्ट, समर ट्रेनिंग इज नॉट एग्जेम्प्ट। दूसरे केस में क्या हुआ कि यहाँ पर मैराथन इवेंट जो कराते हैं स्पोर्ट्स फाउंडेशन, एआर ने इसमें भी डिक्लेयर किया कि ये मैराथन इवेंट कराना भी चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आता है और इसको हम एग्जेम्प्ट नहीं मानेंगे, इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करना मैंडेटरी है।
दोस्तों, गवर्नमेंट की इंटेंशन को अगर समझना है तो आपको बेसिकली जो अभी रिसेंटली जो चेंज हुआ है, जहां पर कि आईपीएल की टिकट्स हैं उनके ऊपर 40% का बेसिकली उन्होंने चार्ज लगा दिया अगर वो ₹500 से ऊपर आती हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट हैं केवल उन्हीं को एग्जेम्पशन मिले, और अगर उससे ऊपर कोई जा रहा है, कोई लग्जरी इवेंट करा रहा है, तो उसको हायर रेट पर उन्होंने टैक्सेबल किया है। किसी को कोई क्वेरी इन स्पोर्ट्स फाउंडेशंस, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स फाउंडेशन? कौन सा लैपटॉप मिल रहा है भाई पंकज जी ने पूछा है, जीएसटी ऑन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फीस received by a cricket player from बीसीसीआई। सर, हम तो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को कवर कर रहे हैं ना। Otherwise, it is taxable to basically person who is receiving that money. Next query. चलिए, किसी की क्वेरी नहीं है सर। ये बताइए ना, एक क्वेश्चन है, राइट टू एडमिशन इन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट इवेंट इज एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन। इसका आंसर बताइए। मेंबर्स प्लीज पार्टिसिपेट। मेरे को भी पता लगेगा कि आप उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से उसे ब्रीफ करता हूँ। So right to admission in recognized sport event is exempt only when the fees is below ₹500. Second question है, entry number 80 which says about recreational activities applied to only sports organization or all registered NGO in 12AA 12AB license. Any answers? नितिन जी ने आंसर दिया है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड 12AA, मतलब बोथ। आई शुड कंसिडर नितिन जी इट इज बोथ। यस, बोथ। Entry number 80, I believe that is for the 12A registered organization only. देखिए नितिन जी, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास 12AA, ये स्टार भी मैंने वैसे बनाया हुआ है, 12AA का लाइसेंस होना यहाँ पर जरूरी है अगर उसको एग्जेम्पशन चाहिए तो। 12AA 12AB के लाइसेंस के बिना उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। 8 लोगों की रिक्वेस्ट उनका आरके की ऐड कर लो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंट्री नंबर 80 और 81? एनीवन वांट टू आंसर ऑन इट?
एंट्री नंबर 80, 81। यस पंकज जी, योर क्वेश्चन इज राइट कि अगर आप 12 रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं तो आप एग्जाम्प्ट हैं, अदरवाइज आप टैक्सेबल हैं। फातिमा जी ने आंसर दिया है कि एंट्री नंबर 80 में 12A का लाइसेंस इज मैंडेटरी। पंकज नितिन जी ने भी आंसर दिया है कि 12A का लाइसेंस इज मैंडेटरी, यही एक डिफरेंस है। सो बेसिकली डिफरेंस ये वाला डिफरेंस है। इसके अलावा एक और डिफरेंस क्या है कि आपको बेसिकली वहां पर केवल एडमिशन फीस की आपको एग्जेम्पशन मिल रही है। यहाँ पर जो आपको बेसिकली एग्जेम्पशन मिल रही है वो एडमिशन फीस की मिल रही है। यहाँ पर जो आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, यहाँ एक्टिविटीज की एग्जेम्पशन मिल रही है। तो दोनों के अंदर बेसिकली स्कोप ऑफ कवरेज का भी बहुत बड़ा अंतर है। गॉट इट मेंबर्स? Now we shall move to other one, that is the GST on religious institutions. So with this we will covered about the अपने जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मदरसा, जो भी चीजें हमारे यहाँ रिलीजियस, जो भी हमारे पूजा के स्थान हैं जहाँ पर कि हम चर्च, सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे कि उन लोगों के ऊपर जीएसटी का क्या एग्जेम्पशन है, क्या बेसिकली टैक्सेबिलिटी है। तो वी विल कवर विद दिस स्लाइड्स। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक एंट्री जो दी गई है, दैट इज द एंट्री नंबर 13। एंट्री नंबर 13 ने बताया कि अगर आपने कोई रिलीजियस सेरेमनी की है, दैट इज एग्जेम्प्ट। और आपने अगर कोई, इसको प्रेंटिस, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपका कोई मंदिर है और उसके अंदर आपका कोई अ, धर्मशाला, अगर आपने कोई रूम अगर किसी को गेस्ट हाउस की तरह बनाकर रेंट पर दिया है, तो दैट इज रिमेन एग्जेम्प्ट। अगर इसको ऐसे समझेंगे कि परफॉर्मिंग पूजा सेरेमनी रिलेटेड टू बर्थ, मैरिज, डेथ, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज और मेडिटेशन सेशंस आर फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर द एंट्री नंबर 13। तो ये बेसिकली इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जहां पर भी अपना पूजा का स्थान है वहां पर की है, दैट रिमेन एग्जेम्प्ट अंडर द एंट्री नंबर 3 पॉइंट नंबर 1। अगर आपने मंदिर के अंदर अगर कोई अपना गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसके अंदर अगर किसी को ठहराया है, तो दैट इज ऑल्सो बेसिकली रिमेन एग्जेम्प्ट इफ दीज कैपिंग आर मीटिंग। यहाँ पर कि रूम का रेंट हम 999 रुपए पर डे से नीचे कलेक्ट कर रहे हैं। हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन ग्राउंड्स का जो किराया है वो 4 टाइम 9 पर डे है। शॉप्स आपकी 9,999 रुपए पर मंथ से कम है। तो इसके लिए आपको मैंडेटरी 12A का लाइसेंस होना मैंडेटरी नहीं है। तो अगर हम किसी को लो कॉस्ट अकोमोडेशन दे रहे हैं, दैट इज रिमेन एग्जेम्प्ट। जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड पब्लिकेशंस, अगर आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं तो दैट इज रिमेन एग्जेम्प्ट विद एंट्री नंबर 98। आप प्रसाद में कुछ भी बांट सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। पूजा सामग्री अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो एंट्री नंबर 148 के अंदर एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर आपने कोई रिलीजियस पब्लिकेशंस अगर आपने सेल किए हैं, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री नंबर 119। यहाँ पर बुक्स, न्यूज़पेपर को तो एग्जेम्पशन होती है ही हमारे एक्ट के अंदर। केस लॉस की अगर बात करते हैं तो जो कि हमने एंट्री नंबर 13 में देखा कि अगर दर्शन थे तो वो एग्जेम्प्ट है। मलाई महादेश्वर स्वामी कस्थेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ बेसिकली रूलिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिससे कि आप सारा कुछ मंदिर जो अपने पूजा के स्थान उनके बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर रूलिंग में बताया कि ऑक्शनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ व्हीकल एंट्री फीस,
auctioning of services of Mundan, the heads of devotees, auctioning of the right to collect service charges, auctioning of the right to collect services charges on for Bahan Puja. These are all taxable. These are all supply of services falling under Service Accounting Code 9997 and taxable at the rate of 18%. वहीं प्रसादम is exempt under the entry number 98. Collection of seva charge on a special darshan is also exempt. Collecting of entry fees, providing access to temple, that is remain taxable, and future tendering of the right to collect charges and providing services, that is also remain taxable. तो ये सारी सर्विसेज आपकी टैक्सेबल रहेंगी. वहीं जो हमने प्रसाद की सर्विस देखी या पूजा सामग्री की देखी, बुक्स देखी, ये सारी आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी. धर्मशाला, अभी तक हमने जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट देखा था, दूसरा हमारा था इसी उसमें धर्मशाला. तो बेसिकली एक धर्मशाला जो चला रहे होते हैं वो या तो जैसे कि हमने एक ने एग्जाम्पल नहीं बताया कि आप या तो मंदिर के अंदर एक गेस्ट हाउस बनाए हुए हो, उस तरह से आप धर्मशाला चलाते हो, या धर्मशाला चलाने के लिए लोग अलग से रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, कास्ट बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के साथ मिलकर धर्मशाला चलाते हैं, या प्राइवेट ट्रस्ट और फाउंडेशन के रूप में धर्मशाला को चलाते हैं. तो नौ पर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा ये हम अब देखेंगे. तो जो धर्मशाला जहां पर चलाई जाती है उसे वहां के लोकल लॉज को भी फॉलो करना होता है. एंड साथ में ये चैरिटी कमिश्नर्स, रिलीजियस एंडोमेंट्स फॉर एफसीआरए, इनकम टैक्स और गुड्स तो है ही. बेसिकली धर्मशाला के लिए जो एग्जेम्पशन है दैट इज द स्पेसिफिक एंट्री नंबर 14. अभी हमने 13 नंबर की एंट्री देखी थी. नाउ वी आर सीइंग 14 नंबर एंट्री, जहां पर की एक होटल, गेस्ट हाउस, क्लब, कम साइट के लिए जहां पर की 1,000 रुपए से कम का किराया लिया जा रहा है, वहां पर वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है. तो इसको हम बेसिकली समझने के लिए यहाँ पर मैंने केस आपके लिए कोट किया है नंदिनी आश्रम ट्रस्ट का. इसके अंदर क्या था कि ट्रस्ट जो प्रोवाइड कर रहा था अकोमोडेशन, जो अंबाजी टेम्पल को विजिट करने आ रहे थे उनके यात्रियों के लिए ट्रस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा था और चार्ज कर रहा था 1,000 रुपीज पर डे. आप लोग बता सकते हैं टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? भावना जी ने बोला है टैक्सेबल. रीजन बताइए मैम. should be below 1,000. ओके, गुड. पंकज जी ने सही आंसर दिया है, शुड बी बिलो 1,000. अच्छा, एक 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 क्वेश्चन और था कि ये यहाँ पर एंट्री नंबर 13, फातिमा जी ने बोला है एंट्री नंबर 13 इज एप्लीकेबल ओनली बिलो 999. ओके, एंट्री नंबर 13 यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं हो सकती. कोई बता सकता है क्यों एप्लीकेबल नहीं हो सकती? इस केस में जहां पर कि अंबाजी टेम्पल को विजिट करने जो यात्री आ रहे हैं, जो ट्रस्ट प्रोवाइड करा रहा है अकोमोडेशन, उसके केस में एंट्री नंबर 13 एप्लीकेबल ही नहीं हो सकती. आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द रीजन कि ये क्यों नहीं हो सकता.
यस, फातिमा जी ने एकदम सही आंसर दिया है कि दोनों के अंदर बेसिकली एंट्री नंबर 13 और एंट्री नंबर 14 के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो आपकी रेंटिंग है, अगर वो गेस्ट हाउस अगर वो टेम्पल के अंदर हो रही है, टेम्पल के अंदर अगर गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, तो आपका एंट्री नंबर 13 एप्लीकेबल होता है। और अगर आपका अकोमोडेशन टेम्पल से बाहर बनाया हुआ है, तो हमारा ये एंट्री नंबर 14 तब एप्लीकेबल होता है। सत्यम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कैन यू अलाउ देम? एनी क्वेश्चन ऑन इट? Yes, sir, in the chat box. जी पंकज sir. जी पूछ रहे हैं टेम्पल इनसाइड गेस्ट हाउस। नो, गेस्ट हाउस के अंदर टेम्पल नहीं है पंकज जी। टेम्पल के अंदर बेसिकली कोई रूम है जैसे आपने गेस्ट हाउस की तरह दे रखा है, देन एंट्री नंबर 13 इज एप्लीकेबल। और अगर गेस्ट हाउस टेम्पल से बाहर है, देन एंट्री नंबर 14 विल बी एप्लीकेबल। जी सर. मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन आंसर्स पर अगर आते हैं तो अगर धर्मशाला फूड सर्विसेज भी दे रही हैं तो टैक्सेबल होगा, एग्जाम्प्ट होगा? No answers. If it is within bracket of 999, that is exempt, otherwise it is taxable. Commercial services like space rental, paid workshop are taxable if it is space rental वाली अगर वो limits को follow नहीं कर पा रहे हैं तो that is taxable. टिकट्स के लिए वो अपना कल्चरल और रिक्रिएशनल इवेंट्स के लिए जो हमने एंट्री नंबर 81 पढ़ी थी, जो 500 रुपीज से नीचे की थी, दैट इज एप्लीकेबल। मैं आपको आंसर्स भी दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। जी जो सर. हमारी अगर रिक्रिएशनल इवेंट्स अगर किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा कराए जा रहे हैं और अगर वो एंट्री नंबर 81 के अंदर अगर वो 500 रुपए से नीचे है तो आपका वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। और ट्रेनिंग अगर कोचिंग की जा रही है रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट 12A के द्वारा तो एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी सर्विसेज को हम बेसिकली वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एंट्री, तो जो इंस्टीट्यूशंस जो ट्रस्ट लाइब्रेरी सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए अगर वो पब्लिक सर्विसेज जो लैंडिंग अगर बुक्स की वो कर रहे हैं, चाहे वो ई बुक्स हो या फिजिकल बुक हो, अगर उसकी लैंडिंग कर रहे हैं दैट विल रिमेन एग्जेम्प्ट, अदरवाइज library services are taxable if it is not run by the 12A registered institute. So we have covered the section of ड्यूल एंट्री जहां पर की स्पेसिफिक एंट्रीज अवेलेबल थी और स्पेसिफिक एंट्रीज के साथ साथ 12A का लाइसेंस भी आपको बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहा था। बट नाउ देर इज ए नो स्पेसिफिक एंट्री अवेलेबल। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो बेसिकली नाम है दैट इज योगा सेंटर। योगा सेंटर अगर आपका 12A में अगर नहीं फॉल कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो दीज आर ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन और अडॉप्शन एजेंसी, ये चारों ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कि अगर ये फॉल नहीं करती हैं 12A के लाइसेंस के अंदर, इनके पास अगर वो लाइसेंस नहीं मिल पाता है, तो दीज आर ऑल सर्विसेज रिमेन टैक्सेबल। ऐसा लिखा कहाँ है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एक चैरिटेबल एक्टिविटी की नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर अगर आप चैरिटेबल की डेफिनेशन में आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि
हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की एग्जेम्पशन इस तरह से दे रखी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलीजियस एंड धर्मशाला एंड योगा, योगा वर्ड, रिलीजियस धर्मशाला योगा, ये यहाँ गलत लिख के है। एडवांस रिलीजियस एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। तो ये वर्ड जब मोदी जी ने अपना इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया था तब इसको ऐड किया गया था। तो अगर 12A का लाइसेंस इसके पास होगा तो ये डेफिनेटली एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। वहीं अगर ऑर्फन अडॉप्शन एजेंसीज की बात करेंगे तो जहां पर की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है एबेंडेंट को, ऑर्फन को, होमलेस चिल्ड्रंस को, तो वो इस एंट्री के अंदर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तीसरी और चौथी नंबर की एंट्री हमारी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो बेसिकली वो ये ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। इनके लिए इनके पास 12AA का लाइसेंस होना इज ए मैंडेटरी कंडीशन अगर ये जीएसटी से बचना चाहते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि 12 ए बी का लाइसेंस को मेंटेन करना कितनी सारी डेडलाइन है, कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल काम है, ये सब लोग आप अच्छे से जानते हैं। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री बनी नहीं है, केवल और केवल 12A की लाइसेंस की एंट्री ही इन्हें एग्जेम्पशन दे सकती है। दोस्तों मैं सीधा केस लॉस पर आता हूँ। योगा सेंटर बेसिकली गलतियां किस तरह की करते हैं। यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का केस है। यहाँ पर उन्होंने क्लासरूम स्टाइल टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड रोल डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिटी कम्युनिकेशन स्किल, इस तरह की एंगर मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे थे और इन्होंने क्लेम किया कि ये योगा सर्विसेज दे रहे हैं। तो एआर ने बताया कि इस तरह से की सर्विसेज जो कि लाइफ स्किल से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कि ये क्लासरूम स्टाइल टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड है, दीज आर नॉट द योगा सर्विसेज एंड दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%। ईशा फाउंडेशन के केस में भी ऐसा ही हुआ, जहां पर कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को उन्होंने योगा में डिक्लेयर किया, बट वो भी एआर ने योगा नहीं माना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट केस है एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पर क्या कर रहे थे वो, ये छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का केस है, जहां पर कि एआर ने ये क्या कर रहे थे कि जो चैनल पार्टनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनसे टेंडर की फीस डिपॉजिट करा रहे थे और स्क्रैप बैटरी सेल इन्हें कर रहे थे। तो एआर ने पाया कि ये सब बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट बनना चाहिए। These are all constitute as a business and that could not be deemed as a charitable activity. तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद 12A लाइसेंस रखने के बाद भी उनके ऊपर जीएसटी का टैक्स लगा दिया। तो इन चारों ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एनी क्वेश्चंस? तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन स्पेशल मैकेनिज्म। स्पेशल सर मैकेनिज्म के इसकी स्पेशल मैकेनिज्म के अंदर हम कवर करेंगे आरडब्ल्यूए, क्लब, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंक्यूबेटर्स को। तो आरडब्ल्यूए के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली आरडब्ल्यूए किस तरह से अपना वो पैसा कलेक्ट करते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं एंट्री नंबर 77 के अंदर। इनके लिए 12A का लाइसेंस कोई एग्जेम्पशन नहीं देता, क्योंकि ये केवल और केवल कुछ पीपल्स का बेसिकली कंसोर्टियम में है और ये एक उन मेंबर्स के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इन्हें पे चैरिटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए इनको मैंने स्पेशल मैकेनिज्म में रखा हुआ है। तो बेसिकली एक आरडब्ल्यूए ऑर्गेनाइजेशन मंथली मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, लिफ्ट मेंटेनेंस, कॉमन एरिया, वाटर सप्लाई, जनरेटर, गार्डन,
गार्बेज, ये बेसिकली जो लिवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर ऐसे चार्जेस कुछ कलेक्ट करती है तो दीज आर एग्जेम्प्ट। अदरवाइज एंट्री नंबर 77 के अंदर दीज आर एग्जेम्प्ट एंड फॉल अंडर द लिमिट ऑफ 7,500, देयर इज ए नो जीएसटी। अदरवाइज अगर वो सिंकिंग फंड, मेजर रिपेयर फंड, पार्किंग चार्जेस ये बोलकर अगर आपसे कुछ कलेक्ट करती है तो उसके लिए एंट्री नंबर 77 की 7,500 की लिमिट कोई फॉलो नहीं करनी है, और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द रेजिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ दीज एंट्रीज, दे नीड टू पे द जीएसटी ऑन इट। सो अगर आपकी 7,500 की जो लिमिट है जो आपको मंथली मेंटेनेंस देनी होती है, अगर वो पूरी हो जाती है तो क्या होगा कि जैसे अगर किसी का 9,000 रुपए का अगर वो मंथली मेंटेनेंस पे कर रहा है तो उसको जो जीएसटी देना है वो पूरे 9,000 पर देना है। हालांकि इसके केस में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बट until it is not clarified by the courts, तो we should go forward with the fully taxable। अगर वो एक लिमिट हम 7,500 की लिमिट को हम क्रॉस कर जाते हैं तो आपको पूरे अमाउंट पर जीएसटी देना मैंडेटरी है। ऑर्गेनाइजेशन को, आरडब्ल्यूए को पूरी अमाउंट पर जीएसटी चार्ज करना मैंडेटरी है। मिक्स यूज सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिनमें रेजिडेंशियल भी है और शॉप्स भी हैं, तो ये जो 7,500 की लिमिट है ये रेजिडेंशियल के लिए एप्लीकेबल है, वहीं शॉप के लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। उसको एनी अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दे आर कलेक्टिंग फ्रॉम द शॉप, दे नीड टू पे द टैक्स ऑन इट। उसको आईटीसी कैसे लेना है कि जो अपना रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं और शॉप्स हैं तो उसको प्रोपोर्शनेटली आईटीसी उसमें क्लेम करना है। एडवर्टाइजमेंट फीस के नाम पर अगर कोई आरडब्ल्यूए चार्जेस लेती है तो उसको 18% के ऊपर जीएसटी देना मैंडेटरी है। क्लब फैसिलिटीज की बात करेंगे तो क्लब फैसिलिटीज में हमने अभी डिस्कस किया था कि 71AA फाइनेंस एक्ट 2021 ने ये इंसर्ट किया, और क्लब में बेसिकली मेंबर्स से जो भी चार्ज आपको रिसीव हो रहे हैं तो एक क्लब के उस पर जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इंक्यूबेटर आई एम स्कीपिंग, चलो इसकी एक मेन स्लाइड करा देता हूँ। सो इंक्यूबेटर एंड इंक्यूबिटी, इंक्यूबेटर बेसिकली नॉर्मली एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि होस्ट करती है स्टार्टअप्स को और जो कि उनकी मेंटरिंग करती है, इंक्यूबेटिंग प्रोसेस करती है। मैंडेटरी रिकॉग्नाइजेशन होना उनका इम्पोर्टेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, स्टेप एनएसटी, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, बायो इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द बराक। तो ये कुछ बोर्ड हैं जहां पर कि इंक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाई होना इम्पोर्टेंट है। उसकी जो एग्जेम्पशन है उसको 48 नंबर एंट्री में एग्जेम्पशन मिलती है। कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, वो स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेटी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी भी सर्विस दे सकता है। और इंक्यूबेटी भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड होती है बट नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या है कि उसको 50 लाख से ऊपर की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। 3 साल के लिए उसको एग्जेम्पशन मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट आता है अपना जीएसटी ऑन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक पॉपुलर सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर, जहां पर कि अभी रिसेंटली भी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो एंट्री नंबर 45 में एग्जेम्प्ट होता है साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसका जो पर्पस है दैट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल फॉर द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इंटर स्टेट जो इंटर स्टेट भी एप्लीकेबल, उसके लिए नोटिफिकेशन आई 47।
कौन से गुड्स कवर होते हैं? दैट इज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी apparatus एंड इक्विपमेंट, एसेसरीज, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोटोटाइप्स, मॉडल्स एंड लाइव एनिमल्स। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी गुड्स सप्लाई किया गया है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फॉल करते हैं, पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, आरईसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि एनआईटी बोलते हैं जिनको, डीआईएसआईआर से अप्रूव्ड हैं, या रिसेंटली जो 8 अक्टूबर को अमेंडमेंट आई थी जहां पर कि गवर्नमेंट एंटिटीज, रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1) सेकेंड थर्ड इसमें कवर की गई थी, वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट होंगी। कब? जब वो अपना जो बेसिकली जो उनके पास गुड्स आ रहा है वो इंस्टीट्यूशन आगे नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए सप्लाई नहीं कर रहा है और वो रिसर्च में यूज कर रहा है। मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि जो 45/2017 में एग्जेम्पशन दी गई है उसके लिए जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन उनको सामान दे रही है उसको अप्रूवल देनी होगी, अपने बिल के साथ लगाना होगा उसके लेटर हेड को, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना ये सब मेंशन करके देगी कि ये इंस्टीट्यूशन है, जीएसटी, पैन नंबर, किस तरह की वो नेचर ऑफ रिसर्च एक्टिविटी में एंगेज्ड है, किस लिए वो उसको प्रिक्योर करना चाहता है। तो ये सारी चीजें जब देगा तभी वो एग्जेम्प्ट होगा, उसको कोई उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लेटर उसको जीएसटी नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसको अगर आपने उसको दे दिया गुड्स को, अगर बेसिकली इंडिया में ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर किसी ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लिया और आगे किसी और पर्पस को बाईपास कर दिया नॉन रिसर्च पर्पस को, तो उस पर हैवी पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों केसेस की बात करेंगे तो रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज, रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तभी आप एग्जेम्प्ट हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। आईआईटी मद्रास एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट था जहां पर कि जो उन्होंने रिसर्च की है गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज के लिए, तो प्राइवेट पार्टीज के ऊपर, कॉमर्शियल एंटिटीज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। थर्मो फिशर साइंटिफिक के केस में क्या हुआ कि इन्होंने जो साइंटिफिक इक्विपमेंट थे इनके साथ साथ इन्होंने इंस्टॉलेशन की सर्विस भी ली। तो यहाँ पर एआर ने माना कि जो इंस्टॉलेशन की सर्विस है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस, तो इसमें इन्हें एग्जेम्प्ट बनाया गया, इंस्टॉलेशन की सर्विस भी इनकी एग्जेम्प्ट कर दी गई। ये एक एआर ने एक गवर्नमेंट एंटिटी जो कि बेसिकली जो रिसर्च कर रही थी वो रिसर्च साइंस से रिलेटेड नहीं थी, इसलिए उसको टैक्सेबल बना दिया। और यहाँ पर ट्रक के स्पेयर पार्ट्स को बेसिकली पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिए जा रहे थे, तो एआर ने बताया कि हमने ट्रक के स्पेयर पार्ट्स एग्जेम्प्ट नहीं किए थे, हमने केवल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक रिलेटेड या इंडस्ट्रियल रिसर्च रिलेटेड ही एग्जेम्प्ट किए थे, बाकी सारा टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पर इसको टैक्सेबल बना दिया। एआर ने एक दूसरे केस में जो रिसर्च का प्रमोशन कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं रिसर्च जर्नल, वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती हैं, जो एग्जेम्पशन है वो केवल गुड्स के लिए है। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो आप शेयर कर सकते हैं। दीज आर ऑल बेसिकली माय डेलिब्रेशन रिलेटेड टू जीएसटी ऑन एनजीओ एनपीओ। होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता चली होंगी या क्लाइंट के लिए आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे जिससे कि बेसिकली आप अपना उसका जीएसटी का बेसिकली स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा पाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो सब प्रियांश इन चैट शर्मा जी बॉक्स। ने क्वेश्चन पूछा था कि दो तरह की फीस कलेक्ट कर रहा है, मेंबरशिप फीस एंड डेवलपमेंट फीस। Yes, membership fees is exempt till 7,500, whereas development fees is taxable, definitely. RWA provides service itself and not through the contractor. Definitely, sir, that is not required कि वो contractor के थ्रू ही करे, वो अगर खुद भी कर रहा है तब भी वो 7,500 की लिमिट फातिमा जी एप्लीकेबल है।
My question is still left unanswered. I have asked already 3 times. Can you again ask that question? I can explain, Vishalji. Affiliation service taken by the school in India from Ivy like board. Affiliation services, I believe that is exempt, but particular actually इसके ऊपर एक circular है जो कि इसमें बेसिकली इंक्लूड करने से रह गया, तो आई कैन आप यू कैन बेसिकली सेपरेटली मैसेज मी, आई विल शेयर द सर्कुलर विद यू। एनी जीएसटी लिमिट, गुलशन जी ने पूछा, इज एनी जीएसटी लिमिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन पब्लिक हेल्थ? जीएसटी लिमिट सर, अगर बेसिकली अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो बेसिकली आपको एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया को, एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से अपने टर्नओवर को चेक करना है, और जो गुड्स अगर आप दे रहे हैं और एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो डेफिनेटली यू कैन चार्जेबल टू जीएसटी। विशाल जी, आई एम जस्ट शेयरिंग माय नंबर, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दैट स्लाइड आल्सो। You can reach me with this number. I will definitely answer. I will share the circular with you. संजीव जी, हाँ जी। सर जहाँ पे एक बिल्डिंग में सारे कमर्शियल ऑफिसेज हैं तो वो भी शॉप्स की कैटेगरी में आएंगे? सॉरी सर। एक बिल्डिंग में सिर्फ ऑफिसेज हैं, कमर्शियल ऑफिसेज, जी आर्टिकल में बना हुआ है, तो वो भी कमर्शियल बिल्कुल सर, शॉप? शॉप की कैटेगरी में आएंगे और उनके ऊपर कोई बेसिकली 7,500 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि आपने 7,500 की जो लिमिट बताई, नॉर्मली मेंटेनेंस इज ऑन फिक्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ फ्लैट। यस सर। अब मोस्ट ऑफ दी पीपल, उनका 7,500 नहीं बनता, पर कुछ एक बड़े फ्लैट्स या पेंट हाउसेज है जिनका 7,500 बन जाता है, जी तब पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा? सर, बट जो 7,000 से 7,500 से नीचे हैं, देखो नॉर्मली जितना मैं बेसिकली काम करता हूँ, जितनी मेरी प्रैक्टिस है सर, नॉर्मली आरडब्ल्यूए के ऊपर जीएसटी, आरडब्ल्यूएओ को जीएसटी लेना ही पड़ता है। रीजन उसके पीछे क्या है कि वो पार्किंग चार्जेस, रॉन्ग पार्किंग चार्जेस कलेक्ट कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट फीस कलेक्ट कर रहे होते हैं, और भी डिफरेंट तरह की पेनल्टीज, क्लब्स वगैरह के चार्जेस कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली एक आरडब्ल्यूए या एसोसिएशंस को जीएसटी तो लेना ही पड़ता है, बट टैक्सेबिलिटी उसकी तभी होगी जब उसकी 7,500 और 20 लाख वाली वो जो लिमिट है, देन दे नीड टू टेक द जीएसटी। वंस दे टेक द जीएसटी, देन जो 7,500 से नीचे हैं आप उनको एग्जेम्प्ट रख सकते हैं, अदर्स विल बी टैक्सेबल। ऐसा तो सर शॉप के केस में भी होता है। मिक्स सोसाइटी जो है वहां पर जो रेजिडेंशियल है, जो 7,500 से नीचे हैं, हम उनको जीएसटी से बाहर रखते हैं, और जो ऊपर है उनको जीएसटी चार्ज करते हैं। सर बट ऐसा प्रैक्टिकली, मतलब कि अगर एक आरडब्ल्यूए ने जीएसटी नंबर ले लिया तो जब वो इनवॉइस कर रहा है तब तो वो सारे ही बिल्स, चाहे वो मेंटेनेंस का बिल 2,000 का रेज हुआ है या चाहे 9,000 का रेज हुआ है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर ही रहा है। तो सारे पे थोड़ी ना करेगा। जो शॉप, आप बताइए आपकी किस तरह की सोसाइटी है, केवल रेजिडेंशियल वाली सोसाइटी हाँ, है या? सिर्फ रेजिडेंशियल वाली है सर। तो सर उसके पास जीएसटी है। हाँ, जीएसटी नंबर है, पर जो बिल 4,500 रुपये पर मंथ का भी आता है किसी रेजिडेंट को, उसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। तो सर वो लगा रहे हैं, मतलब उसको मैं बेसिकली आप चैलेंज थोड़ी ना कर सकता हूँ कि वो क्यों लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं और उसको डिपॉजिट करा रहे हैं, बट लगाना नहीं है 7,500 तक। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। हिमात हिमात रखेजा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कार पार्किंग चार्जेस
कलेक्टिंग पैनल इंटरेस्ट, कैनोपी चार्जेस, सर उसके ऊपर जीएसटी, इनके ऊपर आपको जीएसटी अगर आपके पास है तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना होता है। कोई भी पैनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैनोपी चार्जेस ले रहे हैं, या आप कार पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं, दीज आर नॉट द बेसिकली जो हमने यहाँ पर कवर किया। मैं फिर से आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ, जो बेसिकली नॉर्मल लिवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। These are all basically taxable under the GST. This is the list. एसएलसी फाइनेंस से याद आ रहा है कुछ, तो कंपनी का नाम हमारे उसमें है, क्लाइंट लिस्ट में। फातिमा जी ने क्वेश्चन पूछा, मेंटेनेंस फीस और मेंबरशिप फीस दोनों कवर हैं क्या? नहीं फातिमा जी, जो मेंटेनेंस है केवल उसके लिए एंट्री नंबर 77 में एग्जेम्पशन दी गई है। मेंबरशिप फीस तो वैसे भी 71AA के हिसाब से आपको टैक्सेबिलिटी में लाना ही पड़ेगा। ये जो एग्जेम्पशन है ये केवल मेंटेनेंस फीस की एग्जेम्पशन है। यस हिम्मत जी, अगर बेसिकली 20 लाख से ऊपर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है देन दे टू टेक द जीएसटी नंबर डेफिनेटली। प्रियांश जी ने पूछा, अगर किसी के पास दो फ्लैट हैं, 8500 मेंबरशिप फीस, मेंटेनेंस फीस आई थिंक, एंड अनदर इज 5000, डेफिनेटली उसको 8500 के ऊपर देना है, 5000 रुपए वाले के ऊपर नहीं देना है। एक्चुअली एग्जेम्पशन पर्सन वाइज नहीं है, एग्जेम्पशन फ्लैट वाइज है। नितिन जी ने पूछा है कि 7500 और थ्रेश होल्ड विच इज एप्लीकेबल। एक्चुअली नितिन जी दोनों ही लिमिट देखनी होती है। अगर आपकी 8500 आप मेंटेनेंस फीस कलेक्ट कर रहे हैं और आपकी सोसाइटी इतनी छोटी है कि आपका वो 20 लाख का रेवेन्यू टच नहीं हो रहा है, देन यू आर नॉट सपोज टू टेक द जीएसटी and you are not required to charge the GST until the 10 lakh 20 lakh turnover will not achieve. Any other question? Any other question? Builder not created RWA but charging maintenance fees and GST on it. सर वो बिल्डर अपने अकाउंट में ले रहा है पैसे? Actually, 7500 exemption is available for the RWA or AOA, not for the builder. So I need to basically, that could be रिक्वायर्ड द सेपरेट अकाउंटिंग की, उसको जो वो रिसीव कर रहा है फिर वो जो वो पे कर रहा है तो उस हिसाब से उसको देखना पड़ेगा। नितिन जी ने आंसर दिया है, बिल्डर इज करप्टेड। एनी अदर क्वेरी? सर गुलशन झा इज आस्किंग। पंकज जी, बिल्डर अपॉइंट कर सकता है थर्ड पार्टी को मेंटेनेंस के लिए, खुद भी कर सकता है, बट वो फिर वो रिम्बर्समेंट इन नेचर आएगा, क्योंकि जो एग्जेम्पशन है दैट इज फॉर द आरडब्ल्यूए एसोसिएशंस को एग्जेम्पशंस है। ये गुलशन जी, मुझे एक्चुअली आपका क्वेश्चन समझ में आया नहीं। You are talking for the National Health Mission, NHM, or something else. Can you elaborate it?
एनएचएम के लिए गुलशन जी एग्जेम्पशन है, मैं आपको बता देता हूँ उसकी। एम्बुलेंस, ये सर्कुलर है अपना, सर्कुलर नंबर 51, जहां पर कि एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट एंटिटीज टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्कीम लाइक द NHM are considered activity in relation to public health and a function entrusted to panchayat and municipality under the constitution. That's why they are exempt. Any other questions? I hope all of you enhance your knowledge and definitely will enhance your practice as well, will do better for your client. That was the my objective. Thank you for your comments, sir, Rahul sir, Pankaj sir. Thank you so much. It gives me motivation also, because actually this is a very different topic. Before doing that, I was just in thought कि मतलब पीपल विल अंडरस्टैंड और इट और नॉट कि जीएसटी पर एनजीओ एनपीओ अगर किसी से नॉर्मल कल्चर में हम बात करते हैं तो वैसे समझते हैं यार जीएसटी तो लगता ही नहीं है उनके ऊपर. So there are the multiple things, especially when you basically provide the services other than to the members, to the outsider, GST will become applicable. You will not do the सर्विसेज एज पर द गाइडलाइन, डेफिनेटली इट इज टैक्सेबल. तो बहुत सारी चीजें जैसे जो कि हमने देखी इस 1.5 घंटे के सेशन में कि टैक्सेबल सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं ना. थैंक यू. आई थिंक सत्यम जी वी कैन क्लोज अवर सेशन. Thank you very much, sir, for sharing your valuable knowledge पंकज and जी पीपीटी insights. आपको जरूर मिल जाएगी. सत्यम जी आई ऑलरेडी शेयर्ड द पीपीटी विद यू, प्लीज डू Yes, शेयर विद द मेंबर्स एज वेल. yes, okay, sir. I will be sending. थैंक यू. थैंक यू Thank you so एवरीवन. much, sir, for sharing your valuable knowledge and practical insight with us today. Our sincere thanks to Sir Dr. Rajawala, sir, for organizing this wonderful session, and to all the participants for joining and engaging so actively. Thank you so much, sir, all the participants. थैंक यू. Now will we move the end of the session, sir?